Hi guys, welcome to my session on the topic that you see on your screen, the IIM Ahmedabad selection criteria. काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे इसके बारे में कि IIM Ahmedabad मेरे को select करेगा कि in fact this is the common question that everybody has every year कि do I have a chance, do I stand a chance in getting a call from IIM Ahmedabad? So in this video, I'm actually looking at the selection criteria, the latest selection criteria that IIM Ahmedabad has set up. You are with me, Arun Sharma, and we look at of course CAT 21 का तो भी details नहीं आया है, but effectively more or less these things remain the same every year. So we can have a look at the CAT 20 picture, and based on that we can take a call about what is required and what you need to look at when you are trying to get into IIM Ahmedabad, the PGP program. So before I go into that, the promotions of Unacademy, since we are the Unacademy Catalyst channel. So the Unacademy Combat is a weekly scholarship test, and it is a contest between aspirants across the country, and you get weekly scholarships in this, and you can scan on the scan code on the screen and the QR code on the screen, and you can एनरोल फॉर दिस. और एनरोल करने के लिए आपको एक कोड लगेगा, तो वो कोड यू कैन यूज़ माई कोड फॉर एनरोलिंग विच इज़ शर्मा कैट लाइफ. इस कोड पे एनरोल कर लो, एंड एवरी संडे 12 PM पे टेस्ट होता है, and scholarships are from a pool of 55 lakhs, and you can take the test live from Android, and rank 1 to 3 of every week get 1 year of CAT Plus subscription free of cost, and rank 4 to 10 get 75% scholarship on the CAT Plus subscription and crack or the Iconic CAT subscription, whichever you choose. और rank 11 to 50 आपको 50% scholarship देता है, और 51 to 200 gives you 25% scholarship. So even if you're in the top 200 every week, you end up winning some prize for yourself as a scholarship to the Unacademy Plus program. And this is the promo code you can use, Sharma Cat Life, whether you want to join an Academy Plus or an Academy Iconic. You can use this for a 10% discount on that, or you can also use it to enroll for these scholarship tests on a weekly basis. तो चलो IIM अहमदाबाद का क्राइटेरिया देखते हैं. तो मैंने IIM अहमदाबाद के पेज ही खोल लिया है यहाँ पे. सो we'll go through the page together. So the selection criteria for the 21-23 बैच है, है ना. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए. Let me just go a little bit larger for this. ये तो बहुत बड़ा हो गया. Let me just see whether इस नीचे चला गया. हाँ, तो दिस इज़ द 21-23 बैच, बट एक्सपेक्टेडली 22-24 बैच का सेम रहेगा. और ये जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इसमें किया जाता है. तो व्हाट IIM Ahmedabad does based on the 3 sections of the CAT, वो only the candidates above the following minimum cutoffs in the sectional percentile ranks, the overall percentile rank, and obtaining a positive greater than 0 raw score in all section of CAT will be considered. So 3 things have to happen कि आपके कैटेगरी के अनुसार आपको इतना परसेंटाइल लाना पड़ेगा. आई मीन जनरल EWS कैटेगरी में अगर है तो वर्बल में आपका 70 परसेंटाइल होना चाहिए, DILR में 70 परसेंटाइल होना चाहिए, QM में 70 परसेंटाइल होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटाइल में 80 परसेंटाइल होना चाहिए. तब आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से निकल जाते हो. यू गो टू द सेकेंडरी स्क्रीनिंग ऑफ IIM अहमदाबाद. जो जिनके पास ये नहीं है, अगर आपके पास सपोज एक सेक्शन में 69.8 परसेंटाइल रह गया, बाकी सब आपका यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल है, लेकिन वर्बल में 69.8 हो गया, आप जनरल या EWS कैटेगरी से हैं, तो दे विल नॉट कॉल यू आर आउट. सो यू हैव टू बी अबव 70 परसेंटाइल, एंड ऑल्सो 70 परसेंटाइल अगर जीरो के नीचे पे स्कोर आ गया, रॉ स्कोर आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए हर सेक्शन में. वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही, बट दे हैव जस्ट पुट दैट एज अ दिस थिंग कि कभी किसी साल अगर 70 परसेंटाइल नेगेटिव स्कोर पे आ गया तो दे डोंट वांट टू कॉल पीपल बेस्ड ऑन नेगेटिव स्कोर्स, है ना. एंड ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू दी वेरियस कैटेगरीज दिस परसेंटाइल वेरीज. OBC में 65 परसेंटाइल हो जाता है 70 का, और 75 हो जाता है 80 का, और SC/ST में 60 हो जाता है और 70 हो जाता है, और ST में 50 और 60 हो जाता है.
of people with disabilities, whether they are in general, whichever category they are, the percentile minimum percentile requirements are 60, and PWD ST वाला PWD का 50 requirement है. So that way you can see that whether you are people with disability in the ST category, scheduled tribe category, or in the normal candidates of the scheduled type category, your percentiles in each of the section have to be 50 plus. ठीक है, वो लीजेंड तो आप समझते हैं क्या है. उसके बाद IIM अहमदाबाद क्या करता है कि IIM अहमदाबाद एक AR स्कोर बनाता है. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस एज अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट. मैं एक ये भी खोल लेता हूँ यहाँ पे. तो IIM अहमदाबाद एक AR स्कोर बनाता है, which they call as the application rating score. तो application rating score किस बेसिस पे बनता है? The score application rating score will be used, and applicant's AR score is the sum of the rating scores A, B, C, D based on their percentage of marks obtained in 10th, 12th, depending upon stream, the bachelor's degree and the work experience. तो चार चीज को देखते हैं लोग. ए बी सी डी चार चीज, A प्लस B प्लस C प्लस D आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है. A प्लस B प्लस C प्लस D आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है. और इन चारों चीज़ को देख के, और ये आपका 10th का मार्क्स पे बेस्ड है, ये आपका 12th के मार्क्स पे बेस्ड है, और ये आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स पे बेस्ड है, और ये आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. और एप्लीकेशन स्कोर रेटिंग स्कोर में क्या रहता है? 10th का मार्क्स का आपका 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में आपका स्कोर अगर 90 प्लस है तो आपको 10 मिल जाएगा, 80 to 90 है तो 8 मिलेगा, 70 to 80 है तो 5 मिलेगा, 60 to 70 है तो 3 मिलेगा, 55 to 60 है तो 2 मिलेगा, और लेस देन 55 है तो 1 मिलेगा. तो 10th स्टैंडर्ड के स्कोर में आपको 1 से 10 के बीच में स्कोर मिलेगा. ए का वैल्यू 1 से 10 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर 10th स्टैंडर्ड स्कोर वाज. ऑफकोर्स आपको अपना 10th स्टैंडर्ड स्कोर पता होगा तो आप इसको अपने खुद के लिए निकाल सकते हैं. फिर उसके बाद आपका 12th का जो स्कोर है उसको स्ट्रीम में डिवाइड कर देते हैं लोग. तो 12th के स्कोर पे भी 10 मार्क दिया है इन्होंने, और आपका साइंस स्ट्रीम है, या आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, या आपका आर्ट्स ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, तीनों पे अलग अलग परसेंटेजेस पे 10 मार्क मिलता है. साइंस में 10, 12th में 10 के 90 के ऊपर होना चाहिए, कॉमर्स में भी 90 के ऊपर होना चाहिए 10 मार्क्स लेने के लिए, और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए 10 मार्क्स के लिए आपको 85 होना चाहिए. मान लीजिए आपने BA इकोनॉमिक्स किया है और आपका आपने 12th में इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लिया था और आपका 72% आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 8 मार्क्स मिलेंगे, है ना. अगर आपको 87% आया है 12th में इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में, तो आपको 87% मिलेंगे यहाँ पे, राइट. सो अकॉर्डिंगली कॉमर्स में आपको 77% आया है 12th स्ट्रीम में, तो 8 मार्क्स मिलेंगे. साइंस स्ट्रीम में आपको 82% आया, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. आपको 91% आया साइंस स्ट्रीम में, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे. सो दिस इज़ द सेकेंड इनपुट टू द एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर. ये भी 10 मार्क में से आता है, 1 से 10 मार्क्स मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा ही कम से कम, है ना. और इसके बाद ये 12th का हो गया. उसके बाद बैचलर्स डिग्री एग्ज़ाम को वो लोग डिफरेंट कैटेगरीज में ले जाते हैं. AC1, AC2 ये क्या है मैं आपको ये दिखा दूँ अपने प्रेजेंटेशन पे. तो बैचलर्स रेटिंग्स को वो लोग AC1, AC2 एक्सेट्रा में ले जाते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन आपका बैचलर रेटिंग, आप अगर मेडिसिन एंड सर्जरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, आपका MBBS है, MD, USS है, तो आप AC1 कैटेगरी में आएंगे. CS, CWA कंपनी सेक्रेटरीशिप अगर आपका है तो AC2 कैटेगरी में आप आएंगे. आपकी ग्रेजुएशन डिग्री अगर इनमें से कोई भी है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्रीज, BBA, BBE, BBM, BBS, BMS, ये कोई भी डिग्री है इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग एक्सेट्रा, तो आप AC3 में आएंगे. और अगर आप इंजीनियरिंग डिग्रीज में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर रिलेटेड एरियाज में आ रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया आपने, इंजीनियरिंग किया है, या BSc इंजीनियरिंग किया है, या BS इंजीनियरिंग किया है, और BTech किया है, तो आप AC4 में आते हैं. तो इन सब कैंडिडेट्स को एक साथ ये लोग व्यू करते हैं. और उसके बाद जितने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड डिग्रीज हैं, वेदर इट इज़ BA एक्सक्लूडिंग इकोनॉमिक्स AC2 में आता है, AC3 में आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी छोड़ के बाकी सब में BA, GM,
BDES, B.Ed, BF Tech, BJ, BJMC, बैचलर ऑफ म्यूज़िक, ये जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो AC 5 में आते हैं। और AC 6 इज़ एनी अदर डिसिप्लिन विच इज़ नॉट विद इन AC 1 to AC 5। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके साथ वो लोग, तो आपका बेस्ड ऑन आपकी AC में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस को रेट करते हैं कि अगर आपका जैसे मान लीजिए आपने BBA किया है और आपका रेटिंग आपका 80% से ऊपर है परसेंटेज स्कोर, और अगर आपका कॉलेज GPA देता है तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा उसको। तो 80% से ऊपर अगर आपका परसेंटेज स्कोर है तो आपको 10 रेटिंग मिलेगा AC 3 में। आपका 60 to 65% आ रहा है तो आपको 3 रेटिंग मिलेगा AC 3 में। तो AC 3 आपको इसमें भी ये C स्कोर है आपका। तो C स्कोर आपका ग्रेजुएशन का स्कोर है, ये भी 1 to 10 के बीच में मिलेगा, और ये आपको अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डिग्री में सेट हो रहे हैं। आप IIM अहमदाबाद सिलेक्शन क्राइटेरिया खोल लीजिए तो आपको ये पेज मिल जाएगा, तो यू कैन चेक कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं वहाँ पे। तो ये हो गया AC 3। फिर AC 5 को इन्होंने इंजीनियरिंग में अलग से रखा है। इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग में 75 के ऊपर में 10 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे AC 2 जो आपके CACS वाले थे उसमें 63 के ऊपर 10 मार्क्स मिल जाते हैं। और मेडिकल वाला जो था, मेडिकल वाला AC 1 में 70% के ऊपर 10 मार्क्स मिलता है आपको। तो ये C हो गया। और D जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो 0 से 5 के बीच में वेरी करता है। और ये फॉर्मूला अगर देखिए MF.2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस -11, मतलब 11 महीने वर्क एक्सपीरियंस तक आपको 12 महीने लेस देन 12 मंथ्स, मतलब 11 महीने तक वर्क एक्सपीरियंस तो आपको 0 मिलेगा। और ये वर्क एक्सपीरियंस जुलाई 31, 2021 तक देखेंगे वो लोग। अगर आपको 12 महीने से वर्क एक्सपीरियंस होता है तो 12 महीने वर्क एक्सपीरियंस में ये 12 - 11 ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, और ये 0.2 इंटू 1.2 आ जाएगा। और इसमें अगर 36 आ जाता है, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो यहाँ 25 आ जाएगा इस ब्रैकेट में, और 25 इंटू 0.2 5 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। और 36 के ऊपर भी जाइए आप, 37, 38, 50, 60 मंथ्स कितने भी चले जाइए, तो आपका रेटिंग स्कोर 5 ही रहेगा। योर रेटिंग स्कोर विल बी फिक्स्ड एट 5 फॉर वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर आपको 0 से 5 के बीच में ले जाएगा। तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर इज आउट ऑफ 35 मार्क्स टोटल। And of course, somebody who has great percentage in 10th, 12th graduation and got 3 years experience will get 35. जिसके पास जो फ्रेशर है इन तीनों में अच्छा कर रहा है, ये नहीं है, और मैं अगर वर्क एक्सपीरियंस वाला हूँ, ये इनमें से 2 ठीक है, एक अच्छा है, तो मैं इस पर मैं आई कैन फाइट बैक वन और टू ऑफ देम। इफ आई एम नॉट सो गुड एट, आई कैन स्टिल फाइट बैक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन रीडिंग स्कोर A+B+C+D। उसके बाद फिर ये लॉट ऑफ जिब्रिश ऑन दिस पेज अबाउट हाउ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज कैलकुलेटेड। तो अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री नहीं हुआ है, बैचलर्स डिग्री, तो अवेलेबल मार्क्स पे होगा। उसके बाद स्कोर्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल सब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द मार्कशीट विल बी कंसिडर्ड। तो बोर्ड आपका परसेंटेज मान लीजिए टॉप 4 पे कैलकुलेट करता है, टॉप 5 पे करता है, लेकिन आपने 6 सब्जेक्ट दिए हैं, तो सब सब्जेक्ट जो आपके मार्कशीट पे जितने स्कोर्स हैं सबको लिया जाएगा। दे विल नॉट टेक द बेस्ट ऑफ 5 एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपका और बैचलर्स डिग्री परसेंटेज मार्क्स यूनिवर्सिटी दिया है वही फाइनल होगा। अगर यूनिवर्सिटी अवार्ड नहीं करती है तो यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द मार्कशीट। एंड so these are things that you can just look at. This is just the fine tuning, but now the main thing. तो शॉर्टलिस्टिंग AWT रिटन टेस्ट, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टिंग कैसे होता है। तो 2 स्टेज में शॉर्टलिस्टिंग होता है। स्टेज 1 में डिफरेंट डिसिप्लिन्स में फ्रॉम द एप्लीकेंट पूल वो सिलेक्शन करते हैं पहले एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का। सो ये वाला पैराग्राफ थोड़ा ठीक से पढ़िए। फ्रॉम ईच ऑफ द एकेडमिक कैटेगरीज फॉर विच, नाउ दिस पार्ट यू डोंट नीड टू रीड टू वेल बिकॉज 100 के ऊपर है कि नहीं SC ST PWD आप नहीं जानते हैं, वो हम लोग भी नहीं जानते, बट मोर और लेस ऑल द मेजर कैटेगरीज में 100 के ऊपर तो होंगे SC ST PWD एंड OBC कैटेगरीज।
तो उस एकेडमिक कैटेगरी के लिए टॉप 5% लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज among the applicants to appear for CAT 2020, henceforth referred to as ACRC groups. तो एकेडमिक कैटेगरी के फर्स्ट फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन का प्रोसेस ये है, और इसके लिए, इस सिलेक्शन के लिए वो लोग कॉम्पोजिट स्कोर बनाते हैं, और कॉम्पोजिट स्कोर आपका जो है 0.35 इंटू नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर. नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर क्या है? AR स्कोर आपका क्या था? वो 35 मार्क्स में जो आपका आया था. तो नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर क्या है आपका? वो यहाँ पे शायद दिया हुआ है. चलिए, मतलब आई थिंक इट इज़ द एक मिनट में देख लूँ इसको. इट इज़ गिवन समवेयर हियर. चलिए, एक नॉर्मलाइज आपका जो जो AR स्कोर आया है उसको एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से वो नॉर्मलाइज करते हैं, वेरी सिमिलर टू द वे दे नॉर्मलाइज द कैट स्कोर. ठीक है ना? तो वेरी लाइकली अगर आपका 35 मार्क्स पूरा आ रहा है तो आपको 100 परसेंटाइल के लेवल पे ले जाएंगे. वो 35 मार्क्स पूरा दे देंगे आपको, है ना? तो जो भी आपका नॉर्मलाइज AR स्कोर है, आई थिंक आउट ऑफ 100 मार्क्स रहेगा ये. फिर तो उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज दे वांट टू कीप ओनली 35% वेटेज ऑन द AR स्कोर and 65% weightage CAT score पे. So this is an important aspect that you need to understand. 65% आपका normalized CAT score जो है, मान लीजिए आपको normalized CAT score, ठीक है ना, परसेंटाइल नहीं, CAT score मान लीजिए 228 मार्क में से आपका normalized CAT score, या तीन घंटे वाले एग्जाम में 300 मार्क में से आपका normalized CAT score 152 है. तो 152 इंटू 0.65 आपको यहाँ मिलेगा, और 0.35 इंटू जो भी आपका ये है यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर जो आपका है वो मिलेगा. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका AR स्कोर इज ओनली 35% इम्पॉर्टेंट, एंड ओवरऑल कैट स्कोर इज 65% इम्पॉर्टेंट. सो ये लोग जो आपको बोलते हैं कि अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब है तो अहमदाबाद नहीं लेगा, तो ये बहुत रेलिवेंट नहीं है. लेकिन एक फैक्टर है आगे, और उसके बाद व्हाट दे डू इज़ अपर लिमिट रख दिया उन्होंने हर कैटेगरी के लिए. तो एकेडमिक कैटेगरी 1 जो आपका डॉक्टर्स का था, मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट्स 100 लेंगे वो, और NC OBC SC ST PWD में कितने कैंडिडेट्स लेंगे वो सब दिया हुआ है. और मान लीजिए आप BBA के स्टूडेंट हैं, ये AC कैटेगरी AC1 AC2 AC3 और AC5, और आप BBA के स्टूडेंट हैं तो AC3 पे थे आप, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं AC3 पे आप थे, इकोनॉमिक स्टूडेंट है, तो आपको 100 टॉप 100 जनरल कैंडिडेट्स को अपर लिमिट है. तो जनरल कैंडिडेट्स में 100 लोग को शॉर्टलिस्ट करेंगे वो ईच कैटेगरी से, राइट? तो ये चारों कैटेगरी में 400 लोग आपके जनरल कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे. और उसके बाद AC4 इंजीनियरिंग वाला जो ग्रुप है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है और वो उनको ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 50 ज़्यादा लिया है, तो वहाँ पे अपर लिमिट उन्होंने 150 डाला है. तो पीपल हु से दैट इट्स अगेंस्ट इंजीनियर्स द सिलेक्शन प्रोसेस, प्लीज़ नोट दिस. उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें 150 करने के बाद भी जो फैक्ट है कि इंजीनियर्स कैट को ज़्यादा क्रैक करते हैं वो तो रहेगा ही, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा इसमें, राइट? नाउ सो आपको बेसिकली फिर IIM अहमदाबाद के सिलेक्शन के लिए अपना नॉर्मलाइज स्कोर हाई रखना है पहला, और दूसरा अपना अपना मतलब देखिए, ये हम लोग वी कैन गेट लॉस्ट इन द डिटेल्स, एंड द डेविल ऑफ दिस इन द डिटेल्स, वी कैन गेट लॉस्ट इन दैट. बट IIM अहमदाबाद का अगर हमको एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए कि क्या करना चाहिए मेरे को IIM अहमदाबाद में जाने के लिए, तो देयर आर 2 फैक्टर्स टू दिस. आई हैव टू कीप माई AR स्कोर हाई, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड माई वर्क एक्सपीरियंस. ये चारों को मिला के मेरा स्कोर ठीक ठाक रहना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई शुड डू वेरी वेल इन द कैट. बट इसके बाद इन्होंने एक और अड़ंगा लगाया हुआ है कि ये सब अच्छा हो गया आपका, आप टॉप 100 में आ भी गए, लेकिन हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि आपका 3 क्राइटेरिया होना चाहिए. और ये थोड़ा बैड न्यूज़ है,
बहुत लोगों के लिए जिनका 10th-12th अच्छा नहीं है। ये बैड न्यूज़ ये है कि इसका पहला तो आपको ईच ऑफ द सेक्शंस का सेक्शनल कट ऑफ 70% in VRC, 70 percentile in DILR, 70 percentile in QA और ओवरऑल परसेंटाइल 80, ये तो आपको होना ही चाहिए पहला क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स इसके बिना आप हाई कैट परसेंटाइल भी ले आइए तो आपका कैट परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर बड़ा रहे, उसके बाद भी आपका नंबर तो अच्छा आ जाएगा नॉर्मलाइज्ड आपके आपके एप्लीकेशन कॉम्पोजिट स्कोर में। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है तो आप सीधा आउट हो जाते हैं। पहला आप तो 100 परसेंटाइल भी ले आए लेकिन आप C1 क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये मस्ट कंडीशन है। दूसरा, minimum cutoffs specific to the category and shown in and stream shown in table 7, where P is the average of the percentage marks scored in 10th and 12th exam। 10th और 12th में आपका एवरेज परसेंटेज मार्क्स क्या है, राइट तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम इन 12th, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो 10th एंड 12th में आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर हैं तो 10th एंड 12th में 80 प्लस आपको चाहिए। दिस इज़ द मस्ट। सो आप सब चीज़ क्राइटेरिया बाकी सब अच्छा हो गया आपका, मान लीजिए, लेकिन आपका 10th 12th 80 के नीचे है, आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपका 10th + 12th 80 के नीचे है, तो आप IIM अहमदाबाद से नहीं बुलाया जाएगा आपको, कुछ भी आप कर लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, राइट। कॉमर्स में आपको 77 चाहिए 10th 12th में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में 75 चाहिए 10th 12th में। तो बहुत लोग मेरे को काफ़ी हताश होकर इसके बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आपके पास हाथ में नहीं है, मतलब अगर डेस्परेट आप हैं तो आप ओपन स्कूल से फिर से 12th करके आप परसेंटेज बढ़ा के अपना कर सकते हैं, लेकिन उतना भी वर्थ इट नहीं है, बिकॉज फिर आपका IIM अहमदाबाद जाना ही है, तो आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं। इट्स बेटर टू लुक अहेड इन लाइफ देन गो बैक इनटू दैट जोन, ठीक है। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर कॉलेजेस which will take you, but this is definitely disheartening for a lot of people who did not pay attention to the academics in 10th and 12th। बहुत सारे I accept कि बहुत सारे बोर्ड्स में परसेंटेज ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं 10th 12th में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है थोड़ा सा। अहमदाबाद मेरे हिसाब से अहमदाबाद को इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए, ताकि पीपल फ्रॉम मोर पीपल आर इंक्लूडेड इन द कॉम्पिटिशन एटलीस्ट। बट अब उनका क्राइटेरिया है तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दिस इज़ द क्राइटेरिया, सो वी हैव टू एडहियर टू दिस क्राइटेरिया, राइट। फिर C3 इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन बैचलर एग्जाम, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज। क्या है कट ऑफ परसेंटेज? कट ऑफ परसेंटेज इज 80th percentile ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ACRC ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन पूल। मतलब आप एकेडमिक कैटेगरी 3 में हैं, BBA के स्टूडेंट हैं, और आपके आप BBA के जितने स्टूडेंट्स ने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया, उनका जो बैचलर्स मार्क्स है उसके टॉप 20% में आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 200 लोग ने अप्लाई किया BBA के स्टूडेंट्स ने, और वहाँ पे 40th जब ग्रेजुएशन में मार्क्स उनके लगाए गए तो 40th आदमी का ग्रेजुएशन परसेंटेज 78.2 था। तो अगर आपका, बिकॉज 40th आदमी 200 में से 80th परसेंटाइल पे आ जाएगा, 20 परसेंटाइल उसके ऊपर हैं, 80 परसेंटाइल उसके नीचे हैं, तो आपका अगर 78.1% है ग्रेजुएशन में, तो आप C3 क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं। तो ये C1 C2 C3 आप मीट कर लीजिए, तो आप फिर IIM अहमदाबाद के लिए ऑन ट्रैक हैं। और उसके बाद फिर ये C4 C5 6 C6 आपको बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सेम है C1 C2 C3 रिपीट करने के लिए repetitive। only thing they have done is that they have changed the criteria for the group to be formed for C4 C5 6 वो बहुत important नहीं है। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में जब आप आते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑफ कोर्स PI स्कोर आएगा 50% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू स्कोर पे, 10% वेटेज राइटिंग वाले स्कोर पे, एनालिटिकल राइटिंग वाले पे, 25% स्कोर अभी भी कैट पे रहता है, और AR एप्लीकेशन रेटिंग का जो स्कोर आपका है उसका भी 15% वेटेज है। तो एप्लीकेशन रेटिंग और कैट आपको इंटरव्यू तक पहुंचाता है, और इंटरव्यू में के बाद भी 40% वेटेज उन्हीं का रहता है, और बाकी 60% वेटेज यहाँ से आता है।
So this is how it is. This is the process. अब the rules are set. हम लोग को I mean you can look at this page to understand this better. और आपको basically उसी rules के अंदर खेलना पड़ेगा, right? तो बिफोर आई वाइंड अप देन आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी पे आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट डाल सकते हैं और आप फ़ोटो खींच के जब डाल दीजिएगा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कैट 21 का बम्पर ऑफर है कि 6 मंथ्स, अभी नेचुरल टाइम है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो कैट 21 तक आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और एनरोल नाउ फॉर कैट 22 फॉर दीज बैचेस, दीज आर अपकमिंग बैचेस ऑन 22nd May, 26th May and 29th May with these faculties respectively, and great results from an academy learners. And Iconic CAT 21 is also available, in which you get a personal mentor along with the existing plus subscription. तो चलिए मैं अब विदा करता हूँ आपसे, और ये शर्मा कैट लाइव इज़ द प्रोमो कोड दैट यू विल यूज़ to access an academy plus if you want to join, and also to access the Unacademy combat tests. So thank you so much. Bye bye. I hope you enjoyed this lesson. Bye. Bye bye.